see all of you listen here. Now we are starting with 12th standard, third number chapter of Agriculture Science and Technology. That is third number chapter, mode of reproduction. Now, in this chapter, this is related with our chapter number 11th biology chapter, that is morphology of flowering plant. And in 12th chapter, the first one chapter, that is reproduction in lower and higher plants. Okay, so this chapter is related with our 11th science biology chapter, and that is morphology of flowering plant. And the first one chapter in a 12th biology, that is a reproduction in lower and higher plant. So this is related with. So if you have studied these both the topic, so ultimately you will see that both 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 the chapters are similar. This chapter is similar with that topic. Okay, so now we are starting with the agriculture science and technology in that third number chapter, that is mode of reproduction. So whenever we are starting with the chapter, there is a one point, there is some point which is given in a can you recall in our book. So first we will see that topic. Okay, so there is a one definition. So reproduction is a production of new individual by sexual or asexual method or a mode. So what is the meaning of reproduction? In a reproduction, it is a process by which a new individual and a similar type of individual are formed by a organism by a two mode of reproduction, that is a sexual method of reproduction, and the second one, that is a sexual mode of reproduction. Now, mode of reproduction determine the genetic constitution of a crop plant, that is whether the plant are normally homozygous or heterozygous. Now what is the meaning of this? Mode of reproduction means if inside a plant, if any type of asexual reproduction is a take place. So in asexual reproduction, whatever organism is formed, it is a part of their same genetic. Means if I am taking example of asexual reproduction in a plant, so अगर आपने देखा होगा कि अगर हम लोग कोई हिबिस्कस का प्लांट है, अगर हमने उसका ब्रांच वगैरह कट किया और अगर वो हमने कहीं पे क्या किया, इम्प्लांट किया, सॉ किया, तो उसके वजह से भी न्यू प्लांट का फॉर्मेशन. So this is called it as a vegetative and asexual reproduction in a plant. But there is a no genetic constitution change. वहाँ पर जीन का चेंज नहीं हो. But in a plant, if there is a genetic constitution, यानी कि जहाँ पर sexual reproduction हो. What is the meaning of sexual reproduction? So there is a union of male and female gamete. और वो भी जो sexual reproduction के अंदर जो male gamete के pollen grain है और जो stigma है, ये अलग अलग प्लांट का है. सो उसके वजह से जो नया प्लांट होगा, सो उसके अंदर दोनों प्लांट का कॉम्बिनेशन यानी कि कुछ नए कैरेक्टर्स फॉर्म होने के चांसेस. सो दिस इज कॉल्ड एज अ जेनेटिक कंस्टिट्यूशन चेंज होने का है. ओके, सो दैट इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विल डिटरमाइन द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन. अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वहां पर जेनेटिक कंस्टिट्यूशन नहीं चेंज होगा. अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन चेंज होने के चांसेस या तो न्यू स्पीसीज के आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते. तो वही पॉइंट यहाँ पे दिया है, दैट इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विल डिटरमाइन द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ अ क्रॉप. दैट इज वेदर द प्लांट इज नॉर्मली होमोजाइगस रहे या तो वो प्लांट हेटेरोजाइगस रहे, किसी भी कंडीशन में रहे तो उसके अंदर क्या होगा, फॉर्मेशन. दिस इन टर्न डिटरमाइंस द गोल ऑफ ब्रीडिंग प्रोग्राम. मींस व्हाटएवर प्लांट वी आर सिलेक्ट, हम लोग कौन से प्लांट को सिलेक्ट कर रहे हैं हमारे क्रॉसिंग के, हम लोग होमोजाइगस प्लांट को सिलेक्ट करें, दैट इज कैपिटल टी टॉल प्लांट वो वाला लिया, या तो दूसरा टॉल प्लांट होता है हेटेरोजाइगस, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल. दोनों भी अगर हम लोग प्लांट में से किसी भी सीड को या तो किसी भी पॉलन ग्रेन को अगर हम लोग कैपिटल टी वाला लेंगे तो अल्टीमेटली उससे आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन है वो 100% टॉल ही प्लांट का फॉर्मेशन है. बट इफ वी आर सिलेक्टिंग अ हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट तो उससे आने वाला जो ब्रीडिंग प्रोग्राम से जो नया हमारा गोल है जो फॉर्म होगा उसके अंदर ड्वार्फ प्लांट आने के भी चांसेस हो सकते. तो वही पॉइंट दिया है, whether the plant is normally homozygous and heterozygous, it will turn determines the goal of breeding program. हमारा जो ब्रीडिंग प्रोग्राम है उसके गोल को या तो एम को ये डिटरमाइन. नाउ
if the crop plant are naturally homozygous, naturally homozygous, example in a self pollinator like a wheat, homozygous line would be desired as a variety. Okay, what is the meaning of that? Okay, इसके अंदर मीनिंग क्या बोला है देखो, और नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, but if the plant are heterozygous naturally, example in cross pollinator like a maize, heterozygous population how to be develop a variety, मीन्स यहाँ पर क्या होगा, whatever breeding program के लिए हम लोग कोई homozygous plant का अगर क्रॉसिंग कर रहे हैं homozygous plant से, यानी कि अगर हम लोग वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं, सो हमको नेक्स्ट जो प्लांट मिलेगा वो मोस्ट ऑफ होमोजाइगस कंडीशन वाले ही मिलेंगे। सपोज करो कि जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, इफ आई एम टेकिंग अ प्लांट लाइक कैपिटल टी टॉल, हमने एक पी का प्लांट लिया है, ओके, अगर हमने कोई एक पी का प्लांट लिया है, सो कि पी के प्लांट में क्या होता है, अगर हमने कोई टॉल प्लांट लिया तो टॉल के अंदर दो वैरायटी, एक वैरायटी होता है दैट इज कैपिटल टी टॉल और दूसरा होता है कैपिटल टी स्मॉल। अब सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस क्या हो सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, अगर वो प्लांट कैपिटल टी टॉल है, मतलब उस प्लांट का जो पॉलन ग्रेन और जो स्टिग्मा फॉर्म होगा उस दोनों के अंदर ओवल और जो पॉलन ग्रेन फॉर्म होगा उन दोनों के अंदर जो अलील है वो कैपिटल टी और कैपिटल टी ही होंगे। सो अल्टीमेटली दोनों का फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो नया प्लांट हमको मिलेगा वो हमको कौन सा मिलेगा, सो दैट विल बी अ नेचुरली होमोजाइगस, तो वो हमको होमोजाइगस वैरायटी ही फॉर्म करके देगा। ओके, वो हमको होमोजाइगस वैरायटी ही फॉर्म करके देगा, मतलब कैपिटल टी टॉल प्लांट का ही फॉर्म न्यू वैरायटी का फॉर्मेशन करके नहीं देगा वो। और ये कौन से प्लांट में पॉसिबल है, सो द प्लांट हैविंग अ सेल्फ पॉलिनेटर्स, यानी कि जहां पर सेल्फ पॉलिनेशन ज्यादातर होते हैं ऐसे प्लांट में नए वैरायटी का फॉर्मेशन नहीं होता है, और ज्यादातर जो भी वैरायटी होती है वो होमोजाइगस लाइन की होती है, यानी कि अगर वो टॉल है तो कैपिटल टी, इफ इट इज ग्रीन इन कलर, सो उसके अंदर ग्रीन कलर वाले जो अलील है वो दोनों भी जीन होमोजाइगस कंडीशन, वेदर वो दे में बी होमोजाइगस कंडीशन ड्वार्फ के भी हो सकते हैं या तो वो टॉल के भी हो सकते हैं। ओके, सो दैट विल बी अ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन में ऐसे होने के चांस। बट इफ देयर इज अ क्रॉस पॉलिनेशन लाइक अ मेज प्लांट, अगर मैंने मेज प्लांट का एग्जांपल लिया तो यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज वहां पर क्या होता है कि एक प्लांट में एक फ्लावर में एक ही सेक्स होता है, दैट इज मे बी दैट इज यूनिसेक्सुअलिटी जैसे कि होता है। सो वहां पर या तो पॉलन ग्रेन जो है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, एक प्लांट का जो पॉलन ग्रेन होता है वो किसी दूसरे प्लांट यानी सेम स्पीसीज का जो दूसरा प्लांट है उसके ऊपर स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरे। अब अगर मैंने सपोज करो कि ये वाला कैपिटल टी टॉल वाला प्लांट है और वो दूसरा वाला स्मॉल टी वाला ड्वार्फ प्लांट है, सो अल्टीमेटली ये कैपिटल टी और उसका जो ओवल है उसके अंदर क्या होगा, स्मॉल टी, सो उससे जो नया प्लांट का फॉर्मेशन होगा उसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन आने के चांसेस ज्यादा। सो हेटेरोजाइगस कंडीशन कौन से प्लांट में आने के चांसेस ज्यादा है, सो द प्लांट हैविंग अ क्रॉस पॉलिनेशन, जिस प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा होगा वहां हेटेरोजाइगस कंडीशन नेचुरली ज्यादातर आने के चांसेस है, और जिस प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होगा वहां पर प्लांट के अंदर होमोजाइगस कंडीशन होने के चांसेस ज्यादा, मतलब कि अगर वो प्लांट टॉल है तो होमोजाइगस टॉल, अगर वो प्लांट ग्रीन कलर का है उसके लिए सो दैट इज होमोजाइगस ग्रीन वाले ही दोनों भी अलील रहे, so that is called as the homozygous and naturally homozygous and naturally heterozygous। heterozygous condition क्रॉस पोलिनेशन में ज्यादा होता है और homozygous condition सेल्फ पोलिनेशन में ज्यादा आने के चांस। now consequently the breeding method have to be vastly different for two group of crops, a knowledge of a method of reproduction of a crop plant is also important for making artificial hybrid, means if we have to form a hybrid यानी कि समझो कि मैंने दो प्लांट का मुझे क्रॉसिंग कर, एक प्लांट के अंदर फ्लावर रेड कलर के आ रहे, दूसरे फ्लावर के अंदर प्लांट जो फ्लावर है वो येलो कलर के आ रहे, तो हमने जब आर्टिफिशियल हाइब्रिड किया तो उसके वजह से हमको दोनों का कॉम्बिनेशन होके कुछ न्यू कलर का फॉर्मेशन होने के चांसेस ज्यादा आ सकते, और ये सब कब पॉसिबल है, सो इट इज knowledge of method of reproduction, mode of reproduction, मीन्स यहाँ पर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमको कौन सा चूज करना पड़ेगा,
सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर आर्टिफिशियल हाइब्रिड में नए वैरायटी का फॉर्मेशन आना बहुत ज्यादा, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये पॉसिबिलिटी नहीं, और उसके अंदर भी सेल्फ पॉलिनेशन में नहीं है, क्रॉस पॉलिनेशन में बहुत ज्यादा। ओके, नाउ production of hybrid between a diverse and desirable parent is the basic almost all the modern breeding program. If we have to form a breeding, अगर हमको आर्टिफिशियल हाइब्रिड का फॉर्मेशन करना है तो फर्स्ट तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन ऑफ द प्लांट। हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा पेरेंट को। तो वही पॉइंट यहाँ पे दिया है, देखो, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड बिटवीन अ डाइवर्स एंड डिजायरेबल पेरेंट। हमको अगर हाइब्रिड का फॉर्मेशन करना है, मॉडर्न ब्रीडिंग प्रोग्राम करना है, तो उसके लिए हमको जो पेरेंट्स है उसके डिजायरेबल, यानी कि हमको कौन से कैरेक्टर में ट्रांसमिशन करना, मीन्स अगर मुझे समझो कि दो, एक प्लांट ड्वार्फ है, दूसरा प्लांट टॉल है, सो मुझे मेरे फील्ड में सिर्फ टॉल ही प्लांट को ग्रो करना है। तो जब मैं क्रॉसिंग करूंगा तो मुझे ऐसे हाइब्रिड का फॉर्मेशन करना है, ऐसे सीड का फॉर्मेशन करना है कि वो टॉल प्लांट फॉर्म। तो उसके लिए जो मैं पेरेंट सिलेक्ट करूंगा वो भी अच्छे वैरायटी के, यानी कि टॉल अलील्स वाले होने चाहिए। तो वही पॉइंट दिया है, द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड बिटवीन अ डाइवर्स एंड डिजायरेबल पेरेंट इज अ बेसिक फॉर ऑल मॉडर्न ब्रीडिंग। हर एक मॉडर्न ब्रीडिंग प्रोग्राम में वो पेरेंट जो हम लोग सिलेक्ट करेंगे, दैट वाज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेल पेरेंट एंड फीमेल। नाउ द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अ क्रॉप may be broadly grouped into a two category, that is sexual and asexual. As I already said, there is a two mode of reproduction in a plant, that is sexual and asexual mode of reproduction. So now we will go to a next slide. So now we are starting with 3.1 sexual reproduction. Okay, so in that we are starting with 3.1.1, that is definition of a sexual reproduction in a plant. Now, what's the meaning of sexual reproduction? Sexual reproduction means a fusion of male and female gamete to form a zygote which develops into an embryo. You can see in this picture. Okay, आप लोग ये पिक्चर में भी देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि दिस इज अ स्टिग्मा, ओके, एंड द पॉलन ग्रेन जो कि मेल का गैमेट है, तो ये क्या कर रहा है, स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा, फिर ये पॉलन के ऊपर फॉर्मेशन करेगा, फिर इसके अंदर से जो मेल गैमेट है ये ओवल यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर होगा, और दोनों का यूनियन यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो फॉर्म होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ zygote. So sexual reproduction means a fusion of male and female gamete to form a zygote, and zygote आगे जाके इसका फॉर्मेशन करेगा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। In crops, plant, male and female gamete are governed by a spatial structure, and which is present in a spatial structure. That structure is called as a flower. Okay, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ह्यूमन बीइंग के अंदर ह्यूमंस के अंदर मेल के अंदर टेस्टिस है, फीमेल के अंदर ओवरीज है, लाइक दैट they have a sexual, there are a sexual reproductive part are also present in a plant. So in term of a plant, sexual reproductive organ are nothing but a flower. Okay, जो plant के sexual reproductive organ, that is a flower. Now we will see that the part. Now we are starting with 3.1.2, that is flower. Now what's the meaning of flower? Flower is usually consist of pedicel. Okay, you can see that in a picture. आपको जो ये वाला पार्ट मिल रहा है, that will attach to the flower, और ये इसको stem से attach करेगा. So this part is called as a pedicel. After that, the flower consists of calyx, which contain a sepal. You can see that this green color part, which will provide a protection to a flower at the time of a bud condition, that is called as a calyx, and calyx contain a small part. This is called as a sepal. Now after that, there will be a corolla. This colorful attractive part of flower is called as a corolla, which contains so many petals. After that, androecium, this is male reproductive part. You can see that this one is the anther and filament. So these both the part is called as the androecium. This is the male reproductive part of flower, and the gynoecium, which consists of stamen and and the gynoecium. Next part जो है female reproductive part. This is called as the, you can see that this is stigma, style and ovary. ये तीनों भी part मिला के जो part होगा, that is gynoecium. So this gynoecium is nothing but the pistil भी बोला है इसको, stamens वगैरह. So stamen and pistil, which is nothing but the male and female reproductive part of flower. Androecium male reproductive part or gynoecium female reproductive. And the flower which will consist of this male and female reproductive part.
जिस फ्लावर के अंदर कैलिक्स, करोला एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोशियम, ये सभी पार्ट होते हैं, दिस फ्लावर इज कॉल्ड एज अ कंप्लीट फ्लावर. नाउ आफ्टर दैट अ फ्लावर कंटेनिंग both the stamen and pistil, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल अगर किसी एक ही फ्लावर में है, so this is called as a perfect and hermaphrodite और bisexual flower, यानी कि दोनों भी सेक्सुअल ऑर्गन एक ही फ्लावर में है. so ये फ्लावर को you can see that this picture, तो इस फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों भी एक ही फ्लावर में है. so this flower is called as a perfect flower, hermaphrodite flower or bisexual flower. Now, if it contains stamen but not a pistil, so that is called as a staminate or male flower. यानी कि जिस फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिर्फ रहेगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज गाइनोशियम एब्सेंट है, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग बोलेंगे staminate flower और also call it as a male flower. Then vice versa, if the flower only consists of female reproductive part that is gynoecium बट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वहां पे एब्सेंट है, यानी कि स्टेमेन एब्सेंट है, सो ऐसे फ्लावर को बोलना है पिस्टिलेट फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर. ओके, सो दैट विल ओनली कंसिस्ट ऑफ पिस्टिल बट नॉट द स्टेम. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, नाउ staminate and pistillate flower occur on a same plant but at a different location. Okay, staminate और pistillate flower occur at the same plant, मतलब एक ही प्लांट है और उस एक ही प्लांट के अंदर मेल फ्लावर भी प्रेजेंट है, यानी कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों भी एक ही प्लांट में प्रेजेंट है बट एट डिफरेंट लोकेशन. एक प्लांट के अंदर दो अलग अलग लोकेशन पे प्रेजेंट है. सो दिस टाइप इज कॉल्ड एज अ मोनोसियस स्पीसीज सच एज मेज, कैलोस्किया, कैस्टर, कोकोनट, बनाना एंड कुकुरबिट. So what's the meaning of that? देखो यहाँ पे क्या बोला है, स्टेमिनेट एंड पेस्टिलेट, यानी कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अगर ये दोनों भी एक ही फ्लावर में एक ही प्लांट में प्रेजेंट है बट अलग अलग लोकेशन में प्रेजेंट है, मतलब एक ही प्लांट पे ऊपर की तरफ मेल वाला पार्ट है, नीचे की तरफ फीमेल वाला पार्ट है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ मोनोसियस स्पीसीज एंड दिस कंडीशन, ओके, ये कंडीशन कौन से वाले प्लांट में होगा, मेज में रहेगा, कैस्टर में है, कोकोनट में है, बनाना में है और कुकुरबिटा जो भी है ऐसे वाले में. और ये क्यों होता है, तो यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए उनके अंदर ये चेंज. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, हाउएवर इन अ डायोसियस स्पीसीज staminate or male and pistillate or a female flower occur on different plant, example papaya, date, plum and hemp. So यहाँ पे देखो डायोसियस में क्या बोला है, staminate और मेल, ओके, staminate या तो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अकर ऑन अ डिफरेंट प्लांट. यानी कि देखो स्टेमिनेट का मेल फ्लावर का मीनिंग मैंने क्या बोला था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेल फ्लावर, अगर एक फ्लावर में सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट एब्सेंट है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ मेल फ्लावर. किसी फ्लावर में सिर्फ गाइनोशियम का पार्ट है बट एंड्रोशियम का पार्ट एब्सेंट है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फीमेल फ्लावर. अब हमने मोनोसियस में क्या देखा, एक ही प्लांट है, वहां पे मेल फ्लावर भी प्रेजेंट है और फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट, बट एक ही प्लांट के अंदर उसका लोकेशन अलग है. डायोसियस प्लांट में क्या होगा, एक प्लांट में सिर्फ एक ही फ्लावर रहेगा, आइदर स्टेमिनेट यानी मेल फ्लावर होगा या तो फिर उसके अंदर पिस्टिलेट यानी कि फीमेल फ्लावर. सो द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज papaya, date palm and hemp palm. So these are the example of a dioecious species जहां पर मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पे रहेंगे, वो एक प्लांट पे नहीं रहेंगे. Now the next part is fertilization. Now what's the meaning of fertilization? As you already know, the fusion of one of two sperm within the egg cell producing a diploid zygote is known as fertilization. Okay, जो पॉलिन ग्रेन है, पॉलिन ग्रेन के अंदर जो मेल का पार्ट है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट का यानी कि ओवल के साथ अगर यूनियन हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ fertilization. So after that we will see 3.1.3, that is significance of sexual reproduction. Okay, so sexual reproduction की significance क्या, what is the use of a sexual reproduction? Sexual reproduction make it possible to combine gene from few or more parents into a single hybrid plant.
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो सकता है, दो अलग अलग प्लांट है, एक ही स्पीसीज के दो अलग अलग प्लांट है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक नया प्लांट हम लोग हाइब्रिड फॉर्म करेंगे जिसके अंदर दोनों के भी कैरेक्टर शो। यू कैन सी दैट पिच, ओके, इफ यू कैन सी दैट दिस इज अ इनब्रीड ए, ये ए वैरायटी का प्लांट है, यू कैन सी द फ्लावर इज पिंक कलर। द सेकेंड वाला वही स्पीसीज है, बट इसके अंदर जो फ्लावर का कलर है, मॉर्फोलॉजी है, वो कैसा है, दैट इज येलो कलर। तो ये हो गया बी प्लांट। और जब हमने इनका क्रॉसिंग किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, सो वी गेट अ हाइब्रिड, और हाइब्रिड के अंदर हमको पिंक वाला भी फ्लावर मिल गया और येलो वाला भी फ्लावर एक ही प्लांट में मिल गया, या तो फिर कॉम्बिनेशन करके कुछ अलग मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड इट एज अ हाइब्रिड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिड प्लांट इन अ सेक्सुअल? ये कब पॉसिबल है? सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज दो अलग अलग जीनोटाइप, ये पिंक कलर का जो जीन है ये इस प्लांट से आएगा, जो येलो कलर का जीनोटाइप है ये इस प्लांट से आएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होकर जो नया प्लांट फॉर्म होगा उसके अंदर ये दोनों भी कैरेक्टर प्रेजेंट। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेक इट पॉसिबल टू कंबाइन जीन फ्रॉम few or more parents into a single hybrid plant. Now, recombination among these genes produce a large number of different genotypes. Recombination होगा जब इनके अंदर क्या होगा, जब गैमेट का फॉर्मेशन हो, ओके, व्हेन देयर इज अ गैमेट फॉर्मेशन, मियोसिस जब होगा, सो मियोसिस के टाइम क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन। सो नया प्लांट का जब रिकॉम्बिनेशन होगा हाइब्रिड, सो रिकॉम्बिनेशन अमंग दिस जीन प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट वैरायटी। फिर ये हाइब्रिड प्लांट से जो आगे रिकॉम्बिनेशन होके जो नया फॉर्म होगा उसके अंदर अलग अलग डिफरेंट जीनोटाइप के वैरायटी का फॉर्मेशन होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, एंड इट इज ओनली पॉसिबल विद द सेक्सुअल। Now, sexual reproduction is an essential step in creating a genetic variation through hybridization. जैसे कि हमने यहाँ hybridization किया, तो hybridization में हमको क्या मिला, कुछ नया variety मिला. So this is only possible with the help of genetic variation. नए genes का combination होके कुछ नया gene form होगा और फिर ये form होगा. So, and it is only possible with a sexual reproduction because asexual reproduction में सिर्फ एक ही plant involved होता है. सो उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन होने के चांसेस जीरो है, नेग्लिजिबल। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑलमोस्ट द एंटायर प्लांट ब्रीडिंग इज बेस्ड ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग जितने भी टाइप के प्लांट ब्रीडिंग करते हैं वो सभी प्लांट ब्रीडिंग जो भी है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बेस्ड है। सो दिस इज द significance and a use of a sexual reproduction. Proceed with the next part, that is proceed with the next part, that is advantage of a sexual reproduction. Sexual reproduction के advantage. So now the advantage, that is again the same part. इसका use क्या है प्लांट में? Sexual reproduction is simple and easy. Okay, अगर प्लांट के अंदर करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हमको क्या करना है, सिर्फ एक प्लांट में जो पॉलन ग्रेन फॉर्म होता है उसको हमको रिमूव करना है, और दूसरे प्लांट के हमको क्या करना है, जो स्टिग्मा होता है उसके ऊपर हमको डस्ट कर देना है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर। सो ये नेचुरली हो रहा है, हमको ये आर्टिफिशियली कर देना। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल और इजी है। प्लांट प्रोड्यूस अ लॉन्ग लाइफ, शोज अ ग्रेटर टॉलरेंस टू सॉइल एंड क्लाइमेट। जो भी प्लांट हाइब्रिड या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म होता है इनकी लाइफ साइकिल बहुत ही बिगर होती है, सो लॉन्ग लाइफ रहते हैं। शो अ ग्रेटर टॉलरेंस टू सॉइल, मतलब ये अलग अलग टाइप के सॉइल में भी ग्रो हो सकता है, और क्लाइमेटिक कंडीशन अगर चेंज हो रहा है तो ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन जो चेंज होंगे ऐसे टाइप में भी ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे और टॉलरेट करेंगे खुद। नाउ थर्ड पॉइंट, this is the only way to reproduce whether asexual mean is not a common. Okay, sexual reproduction के अंदर जो प्रोसेस है ये सभी के लिए सेम है। asexual mean it is not common. asexual जो रिप्रोडक्शन है वहां पर अलग अलग टाइप, कभी हमको स्टेम कट करना है, कभी हमको रूट कट करना है, सो अलग अलग मेथड है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सभी के अंदर जो मेथड है वे जो है वो क्या है, स्टेप जो है वो सिमिलर है। सिर्फ हमको जो पॉलन ग्रेन होता है उसको कलेक्ट करना है और स्टिग्मा के ऊपर दूसरे प्लांट पे हमको डस्ट करना और फिर पूरा चेकआउट करना प्रोसेस। तो ये प्रोसेस सभी के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेम होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग अलग है। इंट्रोड्यूस अ वेरिएशन इनटू पॉपुलेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नया वेरिएशन या तो नए प्लांट का वेरिएशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, which is not possible in asexual reproduction. In sexual reproduction, the species can adapt to new environment.
मतलब हमने क्या किया कि महाराष्ट्र का जो सपोज करो कि महाराष्ट्र में कोई एक वैरायटी है, समझो शुगर केन का, और साउथ जो नॉर्थ साइड है वहां पर भी कोई शुगर केन का वैरायटी, वहां के शुगर केन की वैरायटी ऐसी है कि वहां पर शुगर का अमाउंट हाई है, और सपोज करो कि यहाँ शुगर का अमाउंट लो है बट इसका ग्रोथ बहुत हाई है, तो हमने क्या किया, दोनों को हमने क्रॉस कर दिया। तो क्रॉस करने के बाद जो नया फॉर्म होगा तो वो वहां पे ग्रो होगा, यहाँ पे ग्रो होगा। तो यहाँ पे क्या बोला, द स्पीसीज कैन अडॉप्ट टू न्यू इन्वायरमेंट। जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो नया फॉर्म करेंगे, ये नए इन्वायरमेंट में भी क्या हो सकता है, growth इसका possible हो सकता है। Now the a disease is less like to affect all the individual in a population. ऐसे जो प्लांट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म होते हैं, उनके अंदर डिसीज लगने के चांसेस भी लेस होते हैं एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. So these are the advantage of a sexual reproduction. After that, disadvantage of a sexual reproduction. अभी तो हमने देखा एडवांटेज क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है. नाउ वी विल सी द डिसएडवांटेज. इसके कुछ कॉन्स भी है जो कि इसको थोड़ा ये करें. So the first one disadvantage of a sexual reproduction in a plant is sexual propagated plant require a more period for flowering. इनको फ्लावरिंग के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगे. जैसे कि देखो, if I am taking a vegetative propagation, आपने रेनी सीजन में देखा होगा कि हम लोग कभी भी हिबिस्कस का जो प्लांट होता उसको नॉर्मली हम लोग क्या करते, ब्रांच को कट करते और दूसरे जगह लगाते, फिर वो क्या होगा, फटाफट न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा और वो फ्लावर भी देने लगेगा. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, दो प्लांट स्टिग्मा जो है उसके ऊपर पॉलन ग्रेन गिरेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन होने के बाद सीड का फॉर्मेशन होगा, वो सीड कहीं पर हमको सॉ करना पड़ेगा, सॉ करने के बाद उससे छोटा प्लांटलेट फॉर्म होगा, फिर ब्रांच आएंगे, फिर लीफ आएगा, फिर उसके अंदर जब वो फॉर्म होगा, दैट इज रिप्रोडक्टिव साइकिल जब उनका स्टार्ट होगा, फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर का फॉर्मेशन. सो दैट इज द ड्रॉबैक, दैट इज सेक्सुअली प्रोपैगेटेड प्लांट रिक्वायर अ मोर पीरियड फॉर फ्लावरिंग. फ्लावरिंग के लिए इनको टाइमिंग बहुत ज्यादा. Two parents are needed in a sexual reproduction and offspring produced are genetically different from the parent. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमको दो अलग अलग पैरेंट लगे, एक पैरेंट मेल और दूसरा पैरेंट फीमेल हमको सिलेक्ट करना, और उससे जो नया फॉर्म होगा यानी कि जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होंगे वो उनके पेरेंट्स से हमेशा थोड़े डीपर होते, मतलब दोनों भी पेरेंट्स से कंबाइन होके कुछ नए कैरेक्टर का उनके अंदर फॉर्मेशन. टाइम एंड एनर्जी आर नीडेड टू फाइंड अ मेट. मेटिंग के लिए ओके मेट करना है तो उसके लिए टाइम लगेगा, एनर्जी भी प्रोड्यूस मीन्स उसके लिए टाइम कुछ रुकना पड़ेगा. जैसे कि अगर मैंने कौन से वैरायटी को सिलेक्ट किया, उसके अंदर कौन से सीजन में फ्लावरिंग आते हैं, उस फ्लावर में हमको पॉलन ग्रेन कलेक्ट करना है, स्टिग्मा के ऊपर डालना है तो स्टिग्मा कब फॉर्म होगा, उस पर कब डालोगे, फिर आगे का प्रोसेस होगा. सो द टाइम एंड एनर्जी इज नीडेड टू फाइंड अ मेट. सो मेट के लिए हमको टाइम एंड एनर्जी जो भी है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट में पॉसिबल थोड़ा सा लेट होता है. नॉट पॉसिबल फॉर आइसोलेटेड इंडिविजुअल. ना व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट, एक ही वैरायटी है, एक ही स्पीसीज है, बट वो आइसोलेट हो गया अलग अलग कॉन्टिनेंट. जैसे कि समझो कि हमारे यहाँ पर भी कोई हिबिस्कस का प्लांट है और सेम प्लांट हिबिस्कस का पाकिस्तान में या तो दूसरे कंट्री में कहीं पर. अब हमको क्या करना है, हमको उनका क्रॉस करना है. So not possible for an isolated individual. So जो isolated individual है जो सेपरेट हो गया तो उनके अंदर क्रॉसिंग करना पॉसिबल. या तो फिर हमने एग्जांपल वाइज देखा. सो ये वाला हमारा 5th चैप्टर से रिलेटेड है जहाँ पर हमने बायोलॉजी का जो 5th वाला चैप्टर है, तो वहां पर हमने आइसोलेशन के अलग अलग मैकेनिज्म देखे थे. तो वहां पर हम लोग देखेंगे सपोज करो कि कोई एक प्लांट वाटर में चले गया है और एक प्लांट लैंड में है, सो अल्टीमेटली इनमें आइसोलेट हो गया. एक वाटर से फॉर्म हो गया है, वाटर में वो ये हो गया है, एडाप्टेशन हो गया है, और एक टेरेस्ट्रियल फॉर्म. सो जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म का पॉलन ग्रेन है वो वाटर के अंदर नहीं जा सकता है, वाटर वाला जो प्लांट है वो बाहर नहीं आ सकता है. तो इनके अंदर फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है बिकॉज दे आर आइसोलेटेड, दे आर सेपरेटेड. बैरियर्स के वजह से, वाटर के वजह से, अलग अलग फॉर्म के वजह से वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए. सो इसके वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉसिबल नहीं हो पाता. So this is all about that 3.1 third one chapter, that is mode of reproduction in agriculture and